ઘરેથી લઈ આવું ના સર નોટબુક જ નથી આજે કઈ લખવાનું નથી આજે કાંઈ નથી લખવાનું. ના હું કેમ વેચવા આવ્યો મારી બુક લેવાનું? આજે હોમવર્ક કરું દેખાવાનું. First sum, check the answer quickly. In the books of Nishan, first date is 17th July. BR to Abhinav, 25,000. Is that right? Then 17th July again, bank charges to BR. Bank charges to BR 24,219, 781 and 25,000. Is that correct? Then 20th of October, Abhinav to bank it is 25,000. Correct? Then 20th October again, Abhinav to interest it is 1,800. Then again 20th October, bank to Abhinav 5,800. Is that right? Mila? And then 20th October, PR to Abhinav, it is 21,000. Correct? Mila? Then 23rd December, it is cash rebate to BR 20,250, 750 and 24,000. No, 21,000. 20,250, 750 and 21,000. Barabar है? Mila? Got it? This was 11th sum. Okay? 8th sum, Anand, in the books of Anand, there are no dates. So bank BR to Shalini. First entry is bank BR to Shalini. 5,000, 21,000 and 26,000. Is that right? Yes. Then Vikram to BR 21,000. Barabar? Then Shalini to Vikram 21,280. Barabar? Shalini to interest 650. Yes. And BR to Shalini 21,930 and cash to BR 21,930. Bank to BR. Bank to BR 21,930. Mila? Done? Third one is the books of Sneha. There are again no dates. BR to Mega. BR to अच्छा वो पहला वाला जो सम था आनंद वाला उसमें शालिनी का अकाउंट नहीं पूछा था. Did you read it properly? क्या पूछा था? Journal entries in the books of Anand and Anand's account in the books of Shalini. Anand's account in the books of Shalini. तो उसके लिए आप अलग से जर्नल ना बनाओ या रफ में बनाओ तो भी चलेगा. डायरेक्टली लेजर कर सकते हो. ठीक है? तो वो लेजर भी देख लो. इन द बुक्स ऑफ शालिनी यू हैव आनंद अकाउंट. दैट इज पीपी का लेजर बेसिकली. बाय बैलेंस बीडी 26,000 ऑन द क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस बीडी, बाय बीपी 21,000, बाय इंटरेस्ट 650. सब बाय. नोटिंग चार्जेस था. या sorry. Buy balance BD 26,000, buy BP 21,000, buy noting charges 280 and buy interest 650. Is that right? And ये बाजू 2BP 21,000, to bank 5,000, 2BP 21,930, and it tallies on 47,930. 47,930. Told you that mistake, noting charges. You did. This is a common mistake students do. Forget to write noting charges. Is it clear? So buy noting charges आएगा अलग से 280. Clear? Similarly, we had that Sneha वाला sum. Sneha वाले sum का journal पहले check कर लो. It is BR to Mega 15,000 मिला. BR to Mega 15,000 and Mega to BR 15,000. Got it? Hello? Then cash to Mega 5,000. बराबर है? Then Mega to interest 200. मिला? Then BR to Mega 10,000. 200 and cash to BR 10,200. Clear? Moving on the ledger. Ledger में ना मेघा का अकाउंट नहीं पूछा था. मेघा के बुक में स्नेहा का अकाउंट पूछा था. Can you see that?
मेघा के बुक में स्नेहा का अकाउंट पूछा था, तो स्नेहा के अकाउंट में बाय बैलेंस BD it is 15,000. Is that correct? मेरा and then buy BP 15,000 and buy interest 200. This side it is 2 BP 15 to cash 5 and 2 BP 10,200. Carries on 30,200. Is this clear? BR नहीं लिखना है. लेजर पढ़ के क्वेश्चन समझ आया? कितना लोग का रॉन्ग हुआ? रेज योर हैंड. लेजर कितना लोग ने रॉन्ग बना दिया? 1 2 3 4. बाकी लोग का राइट है. इन द बुक्स ऑफ शालिनी आनंद अकाउंट बनाया बीपी वाला, एंड इन द बुक्स ऑफ मेघा स्नेहाज अकाउंट. ओके, સર એક ડાઉટ બોલો. સર ઇન ધ બુક્સ ઓફ નિશાંત વડામાં પેલા આપણને અભિનવનું ઇન્ટરેસ્ટ કરવાનું હોય અને પછી ઇન્ટરેસ્ટ પાર્ટ પેમેન્ટો બતાડવાનું ને બેંક ઇન ચેકના ફોર્મમાં. बैंक में अभी नहीं सकता. હા અને પછી ક્લિયર ટુ અભિનવ શું આવે? 21,000. હા ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડ નહીં કરવાનું, નહીં, 4,000 નો આપણને લેવાનું. हाँ, कारण के पार्ट पेमेंट में આવી ગયું છે ને इंटरेस्ट. અચ્છા 4,000 plus 1,800 आ गया. હા Either we can give the interest in part payment or we can charge it with new bill. पार्ट पेमेंट में दिया तो पार्ट पेमेंट को ऐड करो, न्यू बिल में दिया तो न्यू बिल को ऐड करो. देन न्यू बिल के साथ पार्ट पेमेंट के साथ न्यू बिल में कुछ नहीं आएगा. ओके, नाउ that's it. Any other doubt in the homework? Check. है कुछ? सर ऐसा एग्जाम में आता है क्रॉस एग्जाम में आता है एक बार आया. बोर्ड्स यस, बोर्ड्स में आ चुका है once in the year 2019-18. સર તો સોલ્વ કરવાનું અને સોલ્વ કરવાનું. ड्रॉवर का एंट्रीज कर लेने का, ड्रॉइंग का रफ में करके लेजर बना. ड्रॉइंग का फेयर में करने की जरूरत नहीं है. सिंपल. ओके, ड्रॉवर का फेयर में करो, ड्रॉइंग का रफ में करके लेजर बना. इसलिए ड्रॉवर का एंट्रीज और ड्रॉइंग का लेजर या ड्रॉइंग का एंट्रीज और ड्रॉवर का लेजर क्रॉस कॉम्बिनेशन कैन कम. So be alert. Now, starting with the biggest chapter of this year, that is final accounts. Okay. No need to write anything. पूरा लेक्चर में कुछ नहीं है. Mostly तो नहीं है. Okay. All of you take out the notes. आर्यन किया तू होमवर्क लेकिन होमवर्क किया कि नहीं? वो आर्यन भैया સર પાણી પી રહ્યા. नहीं मारो फाइन. सर बुक ही नहीं था मेरे पास में. बोला तेरे को पेजेस पे. सर अभी अनअवॉइडेबल सिचुएशन था. अवॉइडेबल मैं बताने जाता हूँ आपको. नहीं. हाँ फाइन भरना है. अरे पर ऐसा नहीं. होमवर्क नहीं किया. अरे सर मेरे को तो करना था. ऐसा नहीं कि नहीं करना था. आपको कॉल करके इन्फॉर्म भी किया था. बोला भी तेरे को पेजेस पे. अरे सर इनको कितना डिफिकल्ट है. इनको कितना डिफिकल्ट है तो पहले पढ़ लेगा, क्लबिंग कम करना है. कब पढ़ूँ? 200 बार नहीं जाना. सीए क्लास. चलो, सीए क्लास. ऑल शुड बी मैनेज. चलो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देखो ध्यान से अभी. पेज नंबर 50. सी, what is the basic difference between a sole proprietorship and a partnership? Anyone? Any idea between a sole proprietor and a partnership? What is the difference? बोलो. Sole proprietor में how many owners are there? One single owner. Whereas in partnership, two or more than two owners, right? बराबर है? Now, in a sole proprietorship, okay, all the profits are shared by whom? The single owner, whoever is there in the business, correct? Single owner shares all the profits. He gets all the share of profit. But in partnership, that share gets
divided between the partners. Okay, there may be 2, 3, 4, 5, 10 partners. So this year we are going to have final account not of a sole proprietor but of a partnership. तो मेन डिफरेंस यही है कि नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ जाते हैं। और थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड सीखना है ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म कि एक पार्टनरशिप फॉर्म बनती कैसे, हाउ डज अ पार्टनरशिप फॉर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। एनी आइडिया एनीवन? अगर मुझे कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है तो मैं कैसे बनाऊं? Sorry? Deed. Main thing is the deed. It's called partnership deed. Partnership deed का मतलब? Agreement. Partnership deed means partnership agreement. So this is the main thing by which a partnership comes into existence. Okay? तो कभी भी 2, 3, 4 लोग हैं, सपोज मैं, हितांशु, आर्यन, ब्रज, हम सबको एक फॉर्म बनानी है बिजनेस करने के लिए। तो हम लोग चारों एक अग्रीमेंट बनाएंगे, एक डीड बनाएंगे। उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें लिखा जाएगा सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन बिजनेस में कितना लायबिलिटी उठा सकता है, किसका क्या राइट्स है, कौन कितने लेवल तक का मीटिंग कर सकता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किया था 11th में, याद है? कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर है तो कितना देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 2:2:2:2:2, 2:3:3, 5:4:3:2 क्या होना चाहिए। फिर आपका लोन अगर कोई पार्टनर देता है बिजनेस को तो उसमें क्या रेट से इंटरेस्ट देना चाहिए। बेसिकली राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, गुडविल कैसे वैल्यू की जाए, रिटायरमेंट हो तो कैसे उसको पैसा देना चाहिए, लोन में, कैश में, डेथ हो जाए तो फिर क्या प्रोविजंस हैं, डिसॉल्यूशन हो जाए, बिजनेस बंद करना हो तो फिर क्या प्रोविजंस हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली योर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप। लिसनिंग, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप आर गिवन अंडर दिस पार्टनरशिप डीड। Is this clear? Rules and regulations of partnerships are given under this partnership deed. Sorted out? Now, partnership deed, unfortunately in India, a written deed is not compulsory. In Maharashtra it is compulsory since 1984-85. But in India, pan-India, written agreement is not compulsory. तो इससे क्या होता है, वर्बल एग्रीमेंट भी चलता है। तो ट्रस्ट है, म्यूचुअल पार्टनर्स का ट्रस्ट है और कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया तो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। बट इन महाराष्ट्र रिटर्न डीड इज कंपल्सरी। रिटर्न डीड मतलब क्या? लिखो उसको, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको रिटर्न डीड में कन्वर्ट करो और उस डीड को रजिस्ट्रार के पास जाके थप्पा मरवा के आओ, गेट इट स्टैम्प्ड। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, वैसे पार्टनर्स का रजिस्ट्रार होता है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप। उसके पास जाओ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करो, अपनी फीस भरो रजिस्ट्रेशन की, 1,500-2 हजार रुपए कुछ होती है, एंड देन उसको थप्पा मरवाओ और रजिस्टर करवा दो। तो आपका पार्टनरशिप फॉर्म रेडी हो गया, आपका पार्टनरशिप फॉर्म रेडी हो गया। इज इट क्लियर? So in India it is not compulsory in writing, but in Maharashtra it is compulsory. Written agreement होना जरूरी है। Is this clear? What is a partnership deed? Did you all understand? What is a partnership deed? Rules and regulations. Rules and regulation of partnership. Rules and regulation of partnership. All the details of partnership you can give it in the deed. Is it clear? Now, रिटर्न होना अच्छी बात है कि वर्बल एग्रीमेंट चलेगा। रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल रादर देन वर्बल। व्हाई? प्रूफ। लीगैलिटी इश्यू आ गया तो यू हैव अ रिटन प्रूफ। कभी कोई पार्टनर का वायदागिरी चालू हो गया, कोई कुछ और बोलने लगा तो आपके पास डीड है कि भैया तूने ये बोला था, ये लिखा हुआ है, कोई अलग चीज नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो डीड लिखित रिटर्न होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द पार्टनर्स इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स, कोर्ट ऑफ लॉ वगैरह। क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट अगर प्रॉब्लम्स हो गए तो कोर्ट में तो थोड़ी बोलोगे इसने ये बोला था, मैंने ये बोला था, इट इज माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड।
So it is not going to matter as such. अगर आपका verbal agreement हुआ तो got it? So वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है लिटिगेशन में. अच्छा, अगर आपका वर्बल एग्रीमेंट है फॉर एग्जाम्पल और कुछ डिस्प्यूट हो गया, आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट बोलेगा पहले डीड लाओ, तो डीड तो है नहीं, तो फिर क्या फॉलो करता है कोर्ट? तो देन कोर्ट फॉलोज द एक्ट, द कोर्ट फॉलोज द लॉ. ओके, दोनों होमवर्क आ रहे हैं, स्टिल यू आर सपोज्ड टू पे द फाइन, सो डजंट मेक सेंस. So, You have to pay the तुमने fine. इधर ही किया, मैं खाली क्यों? You have to pay the fine. अरे everyone did it here only almost. When I came before that only they are No, no. completed. Right now I took the book from 2 people. So who is writing right now? Tell me. They just finished. Just the lecture started. इससे पहले हो जाना चाहिए. अरे Yes. अभी कुछ लिखो मत अभी. Don't waste time. Now over here, your partnership deed must be in writing. What if it is verbal agreement? What if it is verbal agreement? Aryan, last time I tell you. Want to sit in the lecture or go out? फाइनली मैं તમને ઇન્ફોર્મ કર્યું તો યાર હું હંમેશા ખરી આવું છું તો તમે આવો. वर्बल एग्रीमेंट होना जरूरी है. अभी वर्बल एग्रीमेंट अगर हुआ तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. कोर्ट में जाओगे तो व्हाट विल द कोर्ट फॉलो? इफ देयर इज नो डीड, कोर्ट विल फॉलो द एक्ट. व्हाट इज द एक्ट? इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसमें बहुत लिमिटेड प्रोविजंस दिया है. सॉरी, क्या प्रोविजंस दिया है? कि अगर डीड ना हो तो आपको ये एक्ट फॉलो करना है. ठीक है, बट एक्ट बड़ा फनी है. एक्ट इज वेरी फनी बिकॉज एक्ट खाली दो ही चीजों के बारे में क्लैरिफाई करता है. क्या दो चीजें? कि इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स विल बी 1:1:1, मतलब इक्वल होगा. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स विल बी इक्वल. मतलब अगर आपका रिटर्न डीड नहीं है और आपका क्वार्टर डिस्प्यूट हो गया प्रॉफिट्स को लेके, तो कोर्ट क्या बोलेगा? कैसे शेयर करो प्रॉफिट्स? इक्वल. क्यों? क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है. ओके, प्रॉब्लम्स में भी हम वही असम्पशन फॉलो करते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करना है इक्वल. और दूसरा, पार्टनर ने अगर कुछ लोन दिया है बिजनेस को, पार्टनर्स लोन, तो उसमें 6% इंटरेस्ट लगेगा. पार्टनर्स लोन मतलब कैपिटल तो अलग चीज है. कैपिटल के ऊपर अगर लोन भी दिया है पार्टनर ने बिजनेस को, तो उस लोन पे बिजनेस विल पे, जैसे बैंक लोन पे इंटरेस्ट देते हो आप, HDFC लोन, ICICI लोन, वैसे पार्टनर लोन पे क्या रेट से इंटरेस्ट देना चाहिए? 6%. डीड में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो. डीड में 8% है तो 8% मिलेगा, 10% है तो 10% मिलेगा, 12% है तो 12% मिलेगा. लेकिन अगर डीड है ही नहीं रिटर्न डीड, तो फिर कितना रेट से देना है? 6% से देना है. बस इतना बोल के चुप हो जाता है. तो लॉ क्लैरिफाइज ओनली 2 थिंग्स. एक तो यार आपका PSR इक्वल होना चाहिए, दूसरा आपका 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए पार्टनर का. बस. सो व्हाट अबाउट सैलरी टू पार्टनर? इट इज साइलेंट. डीड इज अपना एक्ट इज साइलेंट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ दिया ही नहीं है कि पार्टनर को कितनी सैलरी देनी चाहिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं दिया है. इन सब चीजों का मतलब ये है कि कल उठ के कोई पार्टनर बोले कि मैंने ज्यादा काम किया, मुझे ज्यादा सैलरी भी मिलनी चाहिए, प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, ऊपर से सैलरी भी मिलनी चाहिए. तो अगर आपके पास रिटर्न डीड है तो उसमें तो आपने लिखा होगा तो मिलेगा, लेकिन रिटर्न डीड नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी ने डिमांड किया, मेरा 10 लाख का कैपिटल है, इसका तो 2 लाख का कैपिटल था, मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मुझे प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ऐसा किसी ने डिमांड किया तो अगर डीड में है तो आपको मिलेगा, लेकिन डीड रिटर्न नहीं है तो कुछ मिलने वाला भी. तो इसलिए रिटर्न डीड होना बहुत बेटर है. पहले से ही अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर लो. नहीं होगा तो कोर्ट तो क्या बोल रहा है? खाली 2 चीज बोलेगा कि PSR इक्वल होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6%, बाकी कुछ भी मिलने वाला. इज दिस क्लियर? सो एक्ट डजंट क्लैरिफाई मेनी थिंग्स. तो डीड होना अच्छी बात है. ओके, क्या होता है? PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 1:1. पार्टनरशिप लोन 6% मिलतो. पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन मतलब बिजनेस को पार्टनर ने कुछ लोन दिया है. जैसे बिजनेस टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक, सो इट हैज टू रीपे ना.
वैसे बिजनेस कैन टेक अ लोन फ्रॉम पार्टनर ऑल्सो, उस पर भी रीपे करके उसको इंटरेस्ट देना चाहिए, तो वो 6% से मिलना चाहिए। ओके, सो ये दो चीज है, तो इसलिए रिटर्न डील इज ऑलवेज एम्फेसाइज। नाउ ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? अनलिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड का मतलब हियर द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स आर जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स आर जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। मतलब मैंने, भव्या ने और नील ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, हम तीनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब कल उठ के बिजनेस में अगर कुछ लॉसेस हो गए, किसी क्रेडिटर को पैसा देने का आ गया है, लोन को चुकाने आ गया, बिजनेस बैंकरप्ट है, सॉरी बिजनेस में पैसा नहीं है, तो सॉरी हमें अपना पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करके भी उसका चुकाना पड़े जो सोल प्रोप्राइटर में था। सेम लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। पर्सनल प्रॉपर्टी बेच बाच के भी बिजनेस का लोन चुकाना पड़ेगा। प्लस इट इज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल मतलब नील ने कुछ गड़बड़ कर दी तो भी दोनों को, तो भी हम दोनों को बेयर करना पड़ेगा, या भव्या ने कुछ गड़बड़ कर दी तो भी हम दोनों, या मैंने कुछ किया तो इन दोनों को बेयर करना पड़ेगा। आर लायबिलिटीज जॉइंट, जॉइंट एंड सेवरल। सेवरल मतलब इंडिविजुअली कुछ किया तो भी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, सबने कुछ किया तो भी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर ऐसा है। अभी नील बैंकरप्ट हो गया, नील के पास घर में भी पैसा नहीं है, घर बार सब बिक गया, तो क्या फिर क्या करने? हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते नील का प्रॉब्लम था, नील के पास पैसा नहीं, हम दोनों को वो बेयर करना पड़ेगा। भव्या बैंकरप्ट हो गया तो मेरे को और नील को बेयर करना पड़ेगा। मैं बैंकरप्ट तो हो पर्सनल नहीं, पर्सनली बैंकरप्ट हो, बिजनेस में तो, बिजनेस में तो पहले खत्म हो गया पैसा, बिजनेस में तो पहले खत्म हो गया। जब तक बिजनेस में है तब तक तो बिजनेस ही चुका हो गया। बिजनेस में सारा पैसा खत्म हो गया तो घर से लाना है, अभी घर में भी पैसा नहीं है। अच्छा वो ऐसे बोल रहे हैं, वो हम दोनों को खाली भुगतना पड़ेगा, नहीं लेता कुछ। हाँ, तो वो एक्चुअली बैंकरप्ट है, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। तो फिर एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। इज दिस क्लियर? इसलिए काफी लोग है ना ऐसा पार्टनरशिप बनाने के लिए डरते हैं कि साला मैं तो बराबर धंधा करेगा, बाजू वाला नहीं किया तो, उसने नहीं किया तो मेरे को भुगतना पड़ेगा। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच्ड टू पे ऑफ बिजनेस ड्यूज एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल, वन फॉर ऑल फॉर वन। इसीलिए एक नया पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस हुआ, यूएस वगैरह में यही चल रहा है, इंडिया में भी बहुत चल रहा है। इसको बोलते हैं एलएलपी, सुना है? एलएलपी या एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लायबिलिटी कंपनी या कॉर्पोरेट बॉडी बोलते हैं। ओके, कॉर्पोरेशन, एलएलसी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन, इसमें क्या हो जाता है आपका? लायबिलिटी क्या हो जाता है? लिमिटेड। योर लायबिलिटीज बिकम